Hello, students. Good morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class, or I would say the last English class for academic session 2021 for subject English class 8. So today students we would be revising our writing portion according to your paper style. We are going to have two topics in your writing skills, that is diary writing and story writing. So we are going to look at both the things, how to make a diary entry, that means how to write a diary. आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए बोला जाए तो आप डायरी एंट्री कैसे लिखोगे. एंड ऑल्सो स्टोरी राइटिंग वेयर you might be given the outlines of the story and then you have to form a proper story and give a suitable title to it. And if you are being asked to write a moral, at that time you have to write a moral also. So let's begin. Okay, so let's begin with the diary entry. Normally people do have their own personal diaries जहाँ पर लोग अपनी डेली रूटीन की बातें लिखते हैं या फिर दे राइट डाउन देयर इमोशंस, फीलिंग्स, excitement, happiness, or whatever they have gone through the whole day. When they are not able to express or disclose those things to others, they prefer to write it down in the diary. Okay, so people write diaries because they want to note down their experiences, feelings or thoughts. And we write diary for our own personal reason. इसीलिए हम किसी की डायरी पढ़ भी नहीं सकते हैं बिकॉज इट्स अ पर्सनल मैटर, राइट. अभी डायरी जो होता है वो नॉर्मली इनफॉर्मल टोन में लिखा जाता है बिकॉज वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ, मतलब हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, राइट. तो जब भी आप लिखते हो वी कैन यूज शॉर्ट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंसेस. शॉर्ट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसे हम फॉर्मली लिखते हैं तो पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है, फ्रेजेस नहीं लिख सकते हो, वैसे नहीं होता है. आप फ्रेजेस में भी लिख सकते हो. फिर अपना एंगर दिखाने के लिए आप जो भी वर्ड्स यूज़ करना चाहते हो, या फिर अपना एक्सप्रेशंस, ग्रेट जॉय दिखाने के लिए, या फिर आप सैड हो वो दिखाने के लिए, आप अपने जो भी ट्रू इमोशंस होते हैं वो आप डायरी में लिख सकते हो बिकॉज इट हैज़ टू बी अ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल पीस ऑफ पर्सनल राइटिंग. Okay, so you need to remember that diary is an honest and truthful piece of personal writing. So हमेशा जब भी आप डायरी लिखते हो try to note down your honest feelings. जो भी आपकी एक्चुअल में फीलिंग्स है, हम कुछ भी फेक नहीं लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है. क्योंकि डायरी हम अपने खुद के पर्पस के लिए लिख रहे हैं, खुद को याद रखने के लिए कि भाई हमने कौन से दिन क्या किया या मेरी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हुई है वो याद रखने की हम लोग डायरी रखते हैं, राइट. किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपने क्या फील किया उसके बाद, यू डोंट नीड टू राइट अ लाई ओवर देन, यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू. ओके, जस्ट मेक श्योर कि आप जब डायरी लिखते हो स्पेसिफिकली जब हम एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं एट दैट टाइम डोंट यूज़ बैड वर्ड्स या फिर बैड लैंग्वेज. ओके, नाउ लेट्स सी, हियर वी हैव अ पेज ऑफ माधव्स डायरी. दिस इज़ एन एग्जाम्पल गिवन ओवर योर स्टूडेंट्स. नॉर्मली हम डेट लिखते हैं सबसे ऊपर डायरी के, ठीक है. उसके बाद डे लिखते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल इफ़ यू वांट टू. एंड टाइम भी ऑप्शनल है लेकिन डेट आपको डालनी है, ठीक है. देन यू कैन स्टार्ट विद डियर डायरी इफ़ यू वांट टू, एंड देन यू कैन राइट वॉट एवर हैपन्ड दैट डे. What a day, my dream has come true. Yes, I did it, didn't I? I won the first prize in our elocution competition. I still can't believe it. Now that's what Prabhat said to me. I can't believe you won it and not me. Why did he say that? Is he jealous? Well, never mind, he will be all right tomorrow. The teachers were happy with my speech, but I did forget some quotations. Next time I'll be still better. Must write to Mama, she will be so happy. Wish Daddy were here. Anyway, now must prepare for my exams. Who invented exams? I wish that person was never born. Now, I should not be silly. Okay, study for tomorrow, promise. So here students, Madhav has written about an incident जहाँ पर उसने elocution competition में part लिया था. And just look at the way he is expressing himself, right? वो मतलब जो भी सोच रहा है वही चीज़ें उसने लिखी हुई है
येस आई डिड इट, राइट, और वो बिलीव नहीं कर पा रहा है। फिर प्रभात उसका जो फ्रेंड है हु नॉर्मली यूज टू विन, उसने उसको जो बोला वो लिखा। फिर उसने अपने अपने दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे थे वो भी लिखे कि इज़ ही जेलस, वो भी लिखा हुआ है उसने, है ना। फिर सब लिखा, टीचर्स भी बहुत खुश थे, जो जो चीज़ें उसने फील की वो सारी चीज़ें उसने लिख ली। मम्मा को लिखना है, डैडी को, डैडी होते यहाँ पे, इफ़ ही वॉज हियर इट वुड बी सो नाइस। फिर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, अभी उसको एग्ज़ाम्स देनी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए उसने एग्ज़ाम्स जिसने इन्वेंट की है उसको भी बोल दिया बुरा भला, है ना। सो ये चीज़ें हम नॉर्मली डेली डायरी राइटिंग में लिख सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ योर सिग्नेचर विच इज़ ऑप्शनल, बट यू कैन जस्ट राइट योर नेम इन द exam. So students, here are some points which you need to write note. जब भी आप डायरी एंट्री लिखते हो तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। द डायरी ऑलवेज हैज़ अ डेट, राइट, जो मैंने आपको पहले ही बताया। द टाइम एंड डे एंट्रीज आर ऑप्शनल, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको लिखना ही है। द लैंग्वेज हैज़ टू बी वेरी सिंपल एंड वेरी पर्सनल बिकॉज इट इज़ अ डायलॉग विथ वन सेल्फ, मतलब मोनोलॉग भी कह सकते हो आप, जो हम सिर्फ अपने आप से ही बात कर रहे हैं। एंड इट डिस्क्राइब्स एन एक्सपीरियंस, इमोशन, थॉट एक्सेट्रा. इट कैन बी हैप्पी फीलिंग्स और सैड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट कंटेन्स इमोशनल रिएक्शंस टू द थिंग्स दैट हैव हैपन, राइट। जो भी हमारा रिएक्शन होता है, जो हम कभी उस आदमी के सामने नहीं दे सकते हैं, वो रिएक्शंस हम लोग अपनी डायरी में लिख सकते हैं। एंड देयर इज़ ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, सिंस इट इज़ रिटर्न ओनली टू रिकॉर्ड आवर ओन एक्सपीरियंसेस, और वन नीड नॉट टू वरी व्हाट अदर्स विल से, क्योंकि ये जो डायरी राइटिंग होती है जो आप नॉर्मली अपने घर में लिखते हो, ठीक है, अपने लिए, वो किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, सिंसियरिटी मेंटेन करनी है, एंड यू कैन नोट डाउन वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन योर डायरी, ओके, बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू जज यू ऑन दैट बेसिस। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डायरी एंट्री पता चल गया है कि कैसे करनी है। यू वुड बी गेटिंग अ टॉपिक जिसके बारे में आपको डायरी एंट्री लिखनी होगी। तो आप सबसे पहले डेट लिखना, उसके बाद आप डियर डायरी लिख सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, and then you write your content over here, and last thing would be your name. जैसे कि यहाँ पे नाम था माधव, तो मैं माधव ही लिख देती हूँ, ओके। Okay, so now let's move on to the next topic, that is story writing. I hope कि आप सबने पहले भी स्टोरी राइटिंग तो की ही होगी, so you have an idea about how to write a story, right? So we'll see that नॉर्मली वी आर सराउंडेड बाई स्टोरीज़। कुछ स्टोरीज़ फेक होती है, कुछ इमेजिनेशन है, कुछ फिक्शन है, कुछ रियल स्टोरीज़ है। बहुत सारे सिचुएशंस पर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ बनाई जाती है, राइट। सो वी आर सराउंडेड बाई इट एंड वी कैन मेक स्टोरीज आउट ऑफ एनी सिचुएशन। हाउ योर काइट फ्लू द हाइएस्ट इन द कंपटीशन, और व्हेन यू वोक अप टू अ साउंड इन किचन ओनली टू रियलाइज दैट इट वॉज अ कैट, राइट। वो भी एक स्टोरी बन जाती है ना, कि आप सडनली सो रहे थे और फिर उठ गए, वो आवाज़ आपको लगा कि पता नहीं जैसे अर्थक्वेक आ गया, बट व्हेन यू जस्ट वोक अप एंड व्हेन यू सॉ इट वाज अ कैट इन द किचन, राइट। सो स्टोरी जो होती है वो किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सिचुएशन में लिखी जा सकती है। इट जनरली हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और उसके अंदर जो जो एक्शंस टेक प्लेस करती है, यू नीड टू रिमेंबर दैट डू नॉट फॉरगेट द सीक्वेंस ऑफ दो सेंटेंसेस, सॉरी ऑफ दो सिचुएशंस। आपको स्टोरी ऐसे प्लॉट करनी है या ऐसे बनानी है, स्टार्ट ऐसे करनी है कि आपका जो रीडर है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी स्टोरी पढ़े, ठीक है। सो यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग क्लॉज फ्रेजेस विच मे create surprise या excitement in the reader's mind, okay. So you need to remember these specific features while writing a story. The first thing, it has a plot. plot का मतलब क्या होता है, sequence of events, मतलब एक चीज़ हुई, उसके बाद दूसरी हुई, उसके बाद तीसरी हुई। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि आपने ये वाला टॉपिक लिया है, मान लो when you woke up to a sound of kitchen, मान लो यू कैन स्टार्ट विद द स्टोरी के आई वेंट टू स्लीप क्वाइट लेट बिकॉज आई वॉज स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम्स, राइट। एंड
सडनली फिर सुबह जब मैं उठा तो अलार्म से पहले ही ऐसे ही कुछ आवाज़ आ गया, और फिर जब मैं उठा तो मुझे लगा कि earthquake आया हुआ है. I was in a dream where I thought that there is an earthquake happening over here, and that sound was actually not the sound of an earthquake. It was the sound of a cat जो suddenly kitchen में window के through आ गई थी, right? And after seeing that I was quite relieved कि ऐसा कुछ नहीं है, and then I again went back to sleep. So that is how you can plot your story. Okay, it has a beginning, middle and the end. The beginning establishes the setting of the character, right? Starting में हम क्या करते हैं, पूरे plot का setting करते हैं starting में, है ना. Middle develops a problem and the end provides a solution. It has characters and a theme. Theme means central idea behind writing that story. और characters होते हैं, जैसे कि अभी मान लो ये जो स्टोरी मैंने आपको भी सुनाई, उसके अंदर एक लड़का है, फिर एक कैट है ना, और उसका ड्रीम है, और वो ड्रीम जो है वो उसका मेन थीम है उसका. इट मेक्स यूज़ ऑफ राइटर एज वेल एज द रीडर्स इमेजिनेशन. येस, व्हेन यू राइट अ स्टोरी यू हैव टू राइट डाउन योर ओन इमेजिनेशन, ठीक है. एंड इट शुड एंगेज द रीडर्स इंटरेस्ट थ्रू आउट. जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हो इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, ताकि रीडर जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी स्टोरी पढ़े, ठीक है. So let us look at how to write a story with the help of prompts given. Prompts means outline. यहाँ पे दी हुई है, 2 monkeys get a bowl of butter and start fighting. Who is going to eat? An old cat sees them, offers to help. I'll divide it equally between you. Monkeys agree. Cat brings the weighing scale. 2 sides with butter, unequal, eats the extra butter from one side. Repeat. The scales never of equal weight. Cat finishes entire amount of butter. Monkey realizes how fool they have been. Okay, so let's see the beginning of the story. It introduces with the characters over here. So normally whenever you start a story student, you should give the names to the characters. जो भी मतलब आपकी स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको नाम दे दो, ताकि जो रीड करने वाला है उसको भी मतलब आइडिया लग जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 मंकीज़ है, उनको नाम दे दिया गया है और वो पूरा सिचुएशन स्टार्टिंग से प्लॉट किया हुआ है, ठीक है. दैट वंस देयर वर 2 monkeys, जग्गू एंड मग्गू. They lived near a farmer's house and they always fought with each other. Now the middle portion is the development. मतलब ये जो पूरा situation है, right, कि उनको कहीं से बटर मिला, right, फिर वो लोग लड़ने बैठे और फिर कैट आई उधर, है ना, तो वो सारी चीज़ें. One day they were chasing each other up and down a tree. The tree was right next to the kitchen window. They saw the farmer's wife putting a bowl of fresh butter on a table near the window. So this is where they found the butter, right? Hey Maggu, see that bowl of butter? Asked Jaggu. Yes, it looks yummy, replied Maggu. Let us steal it. So उनका जो प्लान है वो भी उन्होंने बताया है यहाँ पे, ताकि आपकी जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग बने. Then the problem starts. When the farmer's wife left the room, Maggu and Jaggu quietly entered the kitchen, picked up the bowl and got out and sat under the tree. But when Maggu put his fingers in the bowl, Jaggu cried, No, you can't have that much. Let me divide first. तो वो लोग जाके बाउल तो लेकर आ गए, बट नाउ दे नीड टू डिसाइड कि हाफ कितना होता है. दैट मीन्स बोथ शुड गेट द इक्वल पोर्शन ऑफ बटर. So Jaggu took out some portion, but before he could put it in his mouth, Maggu shouted, That's more than half. So here अभी दोनों को ऐसा लग रहा है कि उसका जो फ्रेंड है वो ज़्यादा ले रहा है. And they kept on fighting. Then Maggu shouted. पहले किसने शाउट किया? जग्गू ने शाउट किया कि No, let me divide it first. तुम बहुत सारा ले रहे हो. फिर जग्गू ने पार्ट करके दिया उसको. And then he said that okay, now you take this, I'll take that. So Maggu said no, it's more than half. Put it back this instant, and they started fighting over the bowl of butter. Now there came the entry of cat. अभी उसको भी हम नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है. A cat called Chatur was sitting at a distance and watching the whole scene. मतलब ये जो कैट थी वो दूर से कब से देखे जा रही थी कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है. She was very clever. She approached the 2 monkeys. Hey brothers, what are you fighting about? Maybe I can help.
So she just pretended as if she is there to help them out, but actually we know कि वो उसको help करने नहीं जा रही थी, right? So Maggu and Jaggu narrated the whole incident to Chatur. Chatur laughed and said, "Oh, that is not a problem at all. I have a weighing scale. I'll divide a bowl of butter into 2 equal portions." मेरे पास weighing scale है, ठीक है, और वो मैं लेके आऊँगी और उसके ऊपर आप दोनों को 2 equal portion में divide करके दे दूँगी. So Chatur took out the butter and put it on the 2 scale, but one scale hung lower than the another. अभी जिस स्केल के अंदर ज़्यादा होता है उधर से वो थोड़ा ले लेती है और थोड़ा ज़्यादा ही लेती है ताकि वो दूसरे वाला जो स्केल है वो वापस ऊपर चला जाए, है ना. Let me eat a bit from your bigger part and that will make the 2 parts equal. So saying, she ate some butter from the heavier scale. But lo, the other scale hung heavy. अभी वो तो होना ही था क्योंकि वो क्या करती थी, थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेती. मान लो अगर स्केल के ऊपर एक जगह 100 ग्राम है और दूसरी जगह 110 ग्राम है. सो व्हाट शी विल डू, शी विल टेक 20 ग्राम फ्रॉम दैट हैवियर वन. तो अभी वहाँ पे 90 हो जाएगा और यहाँ पे 100, तो ये अभी 100 है तो उसमें से वो 20 निकालेगी. वैसे कर करके उसने दोनों को इक्वल करने के चक्कर में बटर खा लिया, राइट. So she took another chunk from that scale and ate it too. Now the first scale hung heavy, so she ate a portion from that again. This went on for quite some time, but the scales were never equal. And finally there was hardly any butter left on the scales. मतलब जो weighing scale था उसके ऊपर बहुत ही कम बटर बचा हुआ था क्योंकि उसने वो थोड़ा थोड़ा करके सब खा लिया. Hey, wait, don't finish the butter, the monkey shouted. But alas, it was too late. चतुर हैड पॉलिश्ड ऑफ ऑल द बटर. चतुर ने अपनी क्लेवरनेस से पूरा ही फिनिश कर दिया. शी गेव अ कंटेंडेंट साइड एंड सेड, थैंक यू फ्रेंड्स, दैट वॉज लवली. शी टुक हर स्केल्स, जम्प्ड ओवर द फेंस एंड वॉज गॉन. मतलब उनको उल्लू बना के उनका बटर खा के चली गई वहाँ से थैंक यू बोल के. सो दीज ऑल वर्ड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पूरा डायरेक्ट स्पीच में बात की गई है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो कन्वर्सेशन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है स्टोरी के अंदर, ठीक है. एंड ऑफ द स्टोरी, लास्ट में क्या रिजल्ट आया कि पुअर जग्गू एंड मग्गू आर लेफ्ट लुकिंग एट द एम्प्टी बोल. ओनली इफ दे हैडंट फाउट ओवर द बटर एंड शेयर्ड व्हाट दे हैड देन दिस कुड नॉट हैपन. सो जग्गू और मग्गू के पास कुछ नहीं बचा और उनको ऐसा लगा कि अगर हम लोग लड़े ही नहीं होते और अच्छे से शेयर कर लिया होता तो वो बटर हमारे पेट में होता, चतुर के पास नहीं जाता. ओके, सो दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू राइट द स्टोरी एंड यू माइट हैव नोटिस्ड कि स्टोरी कैसे डेवलप होती है एट ईच स्टेप, राइट. एंड इट नेवर फेल्स टू सस्टेन आवर इंटरेस्ट. दैट मीन्स आवर इंटरेस्ट, जो अपना रीड करने का इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है, वो बने रहना चाहिए लास्ट तक, ठीक है. अ स्टोरी मे और मे नॉट कंटेन अ मॉरल. A moral is a lesson that we learn from a particular story. So it's not necessary कि हर स्टोरी के अंदर कुछ मॉरल होगा, लेकिन हाँ ये जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वो मॉरल वाली स्टोरी थी कि वी शुडंट कीप ऑन फाइटिंग, क्योंकि अगर हम फाइट करते हैं तो कोई और उसका बेनिफिट उठा लेता है, ठीक है. सो वाइल राइटिंग अ स्टोरी एड एज मैनी डिटेल्स एंड डायलॉग्स एज यू वॉन्ट. आप स्टोरी को बड़ी बना सकते हो. डायलॉग्स जैसे कि मैंने आपको बोला, डायरेक्ट स्पीच में आप अगर कन्वर्सेशंस लिखते हो तो वो आपकी स्टोरी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया है हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री एंड हाउ टू राइट अ स्टोरी. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can always WhatsApp me on my personal number, and all the best for your exam, students. Thank you.